हे गोविंद, मेरा सखा कौन? आप सभी के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है? यार मुझे ऐसा लगता है सेक्सुअल हरासमेंट लाइक मिसयूजिंग पावर बाय एनीवन, इनअप्रोप्रिएट टचेस, बिहेवियर, इट कैन बी विजुअल, वर्बल, फिजिकल, किसी भी तरीके से हो सकता है। आशा, आपके लिए? मेरे लिए सेक्सुअल हरासमेंट कोई भी ऐसा अनवेलकमिंग बिहेवियर जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करूं, जैसे वियर्ड टच, वियर्ड तरीके से देखना और सजेस्टिव बॉडी मूवमेंट। और अमन? मेरे लिए सेक्सुअल हेरासमेंट है एनीथिंग दैट इनवाइट्स अनडिजायरेबल सेक्सुअल मैसेज। ओके, बिसाइड ऑल दिस जनरल डेफिनेशन जो हम दे रहे हैं, इसके अलावा मैं चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है डेफिनेशन, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। ओके, जैसे कि उनके हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट इज़ एन अनवेलकमिंग एंड इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल रिमार्क्स, जैसे कि जो कि वर्बल या फिर नॉन वर्बल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल विस्लिंग, किसिंग साउंड्स निकालना, बाल छू देना, दुपट्टे छू देना, कपड़े छू देना या फिर बॉडी डायरेक्ट टच कर देना। बट द मोस्ट important keyword that Supreme Court used is that these remarks are one-sided, unwanted and unwelcoming. This is the basic that Supreme Court has given definition about the sexual harassment. I want to share a very heinous act which happened in my nearby locality, that is Pandav Nagar, which can traumatize anyone. Oh, what happened? You know, a small 4-year girl was raped by 34-year pedophile men in Delhi at Pandav Nagar. You know, on Saturday, that is one day before Holi festival, I have heard about this, that a small girl was going for her tuition classes and tuition teacher was not present there. So tuition teacher's brother has done all this heinous act with a 4-year girl. He's just a monster. And after that, when a girl returned to her home, her mother was literally shocked after looking her condition, and instantly she ran away for the hospital. But the case was very serious that the hospital has also referred her to the AIMS. And then after that, all act came into knowledge, that police, media and all, everyone got to know then. And even medical tests also proven that the girl was raped. And you know, after knowing this all situation, their local people were get violent, too much violent, so that they want to fight, literally they want to fight for that girl. And so in that area, police force, military forces, all were present there to control all that matter, including DCP, CP, all police position, higher position members were present there. And then finally the man was arrested under POSCO Act. And after this, all police forces were present there so that the people not get violent again. And that act was so much serious, yeah. Even normal markets, vegetable markets were not allowed to on approx so many days after that. And can you believe all that this type of act happened with a small girl? But even though people's mentality was too much genderized, that I have heard someone talking about this incident and they were like, ladki wala bawal hua hai. Instead of this, they can use that word यार कि बच्चे के साथ हादसा हुआ है या बच्चे के साथ गलत हुआ है. इंडिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड है। अगर हम 2011 सेंसस को देखें तो देर आर 472 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। सो एक ह्यूज चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड करता है डेट स्टेट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन। और इंडिया क्योंकि सिग्नेटरी भी है यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स पे। सो अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट की बात करें जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर 2012। सो जो एक्ट है ये कवर करता है ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज़। जो ये एक्ट है ये काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली है और इसमें ट्रायल काफ़ी स्पीडी होगा।
इसमें प्रोविजंस है कि इन्वेस्टिगेशन जो है विदिन 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगी और ट्रायल विदिन 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश करेंगे। एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल भी है और इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं सेक्सुअल असॉल्ट की, जिसमें जो काफ़ी हीनियस है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो उसमें जो है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 ईयर्स की है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। पॉर्नोग्राफिक पर्पस के लिए मिनिमम 6 ईयर्स है। इसके बाद भी हम देखें तो क्योंकि जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस है सेक्सुअल अब्यूज़ के वो कम नहीं हो रहे थे, तो गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट भी किया इसमें 2019 में, जिसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी लाया उन्होंने और लॉ को और स्ट्रिंजेंट बनाया, पनिशमेंट्स को और इंक्रीज़ किया। फिर भी हम देखें NCRB डाटा 2020 के, तो देयर आर 28.9% चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ इन देयर लाइफ, और उसमें जो रिपोर्टिंग हुई है वो खाली 65.6% केसेस में। तो अभी भी हम देखें तो काफ़ी चिल्ड्रन ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़, और उसमें कई केसेस में जो है ऑलमोस्ट 1/3 केसेस में रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी है कि वो इतना बच्चों को इसके बारे में अवेयर नहीं करते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं। सेक्स एजुकेशन की बातें वहाँ कम होती हैं, और कई बार हम देखते हैं स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे इंस्टांसेस हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि रिपोर्टिंग बढ़े और केसेस जो है सामने आए। तो इस सब से एक सवाल उठता है कि क्या सेक्स एजुकेशन पे भी करिकुलम बनना चाहिए? क्लास 8th और 10th में हम सब पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चेंजिंग बॉडीज एंड ड्रग अब्यूज, बट इज दैट ऑल इनफ? See, nobody is discussing about sexual health and its importance. यहाँ तक कि in many cases, girls and boys are made to sit in separate classes while teaching these chapters. तो इसीलिए it is essential that such education should begin at an early stage in our lives. Little children should be taught about good touch and bad touch ताकि वो identify कर सके और they can let someone know if they are being sexually harassed. And so it is very important to create a safe place around our children ताकि वो सामने से आके हमसे बात कर सके, खुल के बात कर सके और बिल्कुल भी डरे ना। यौन उत्पीड़न एक ऐसा भयावह अनुभव जो किसी महिला या पुरुष को ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत असहनीय चोट पहुंचाता है। यौन उत्पीड़न एक वह क्षण है जहां हम अपमानित महसूस करते हैं। आंखें मानो जैसे कि शरीर को स्कैन कर रही होती है। हाथों के फिसलने का एहसास हम बखूबी समझ जाते हैं। जब पुरुष अपनी मर्दानगी का बड़े गर्व के साथ अपना सीना तान कर खड़े होकर अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करते हैं, तब हम बाहर से बिल्कुल शांत होते हैं। हाँ, हम शांत दिखते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से टूटे हुए होते हैं, बिल्कुल टूटे हुए। यौन संबंधों के बदले इंक्रीमेंट और प्रमोशन का वादा करना, मानो हम इंसान नहीं, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर हो। जो बातें आपको महज सिर्फ टिप्पणी के रूप में लगती हैं, टिप्पणी प्रतीत होती हैं, हे पुरुष समाज, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, जरा कृपा भी कीजिए और ऐसी गलती ना करें। वह आपकी हंसी में की गई टिप्पणी एक स्त्री के मन में डर पैदा कर सकती है, और वह स्त्री तो खुद आपके भी घर की हो सकती है ना? क्यों हो सकती है ना? फिर और तो जब ये अफवाहें और चुटकुले इतने असहनीय और अपमानजनक हो जाते हैं, तब जाकर हम आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और बचाव में आप कैसे तर्क देते हैं? हमारी मुस्कुराने का तर्क देते हैं। आप अभद्रता का आरोप
हम पर ही लगाते हैं और इसी के साथ आप यौन उत्पीड़न को सही ठहराते हैं, सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पता है उस क्षण में हम कैसा महसूस करते हैं? हमारे अंदर क्या अजीब सी भावनाएं होती हैं। हमारा खून खौलता है, फिर भी हम सहते हैं। हम महसूस करते हैं, हम डरते हैं, हम नफरत, बहुत नफरत करते हैं, हम वाकई में बहुत सहन करते हैं। हम कब तक, आखिर कब तक महज गलतियों के नाम पर और महज गलतियों के ही नाम पर नजरअंदाज और माफ करते रहेंगे? ऐसी गलतियां क्या बार बार होती हैं? हम कब तक कहेंगे कि हम मजबूत हैं? आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा? सुनो नारी, इस चीज का तो नहीं पता कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, पर हाँ, हम इतना जानते हैं कि हमें अब तय करना ही होगा कि किस वक्त हम ये कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा, और बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कई केसेस हैं that go unreported while traveling. There are many cases that happen while traveling, and I'm sure there are many women out there that have experienced. एक बार मैं भी जब मेट्रो ले रही थी तो बहुत भीड़ थी मेट्रो में, तो मैं जिस भी कोच में घुस पाई मैं घुस गई, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मैं जैसे तैसे एक पोल का सहारा लेके खड़ी हो गई। फिर मेरे पीछे एक आदमी था, वो बार बार हिले जा रहा था और मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक दिस पर्सन जो मेरे सामने खड़ा था, उसने मेरे को थोड़ी सी स्पेस बना के दी ताकि मैं अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे खड़ी हो सकूं, एंड आई स्विच्ड माई प्लेस। उसके बाद जब मैं अपने स्टॉप पे उतर रही थी तो द सेम पर्सन हेल्प्ड मी गेट आउट ऑफ द मेट्रो, क्योंकि बहुत क्राउडेड था एंड इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, तो ही हेल्प मी गेट आउट ऑफ द मेट्रो एज वेल। हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात की, वाइल ट्रैवलिंग की बात की, पर एक और जगह है जहाँ के केसेस आर यूजुअली अनरिपोर्टेड, आवर ओन होम्स। अ प्लेस वेयर अ चाइल्ड इज सपोज्ड टू फील सेफ इज द प्लेस वेयर दे एनकाउंटर हरासमेंट एंड अब्यूज। जैसा कि आशा और कोमिल ने अलग अलग इंसिडेंसेस के बारे में बात की, ऐसे इंसिडेंसेस हमारे इंडिया में काफ़ी रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1985 में। राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर वुमेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम चल रही थी। उसमें एक लेडी एम्प्लॉयड थी जिनका नाम था भंवरी देवी। वो एक गांव में चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए गई थी, जहां पे 1 साल की बच्ची की शादी हो रही थी। लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो शादी रुक नहीं पाई, क्योंकि जिनके घर में शादी थी वो वहाँ के लोकल थे और मनी और मसल पावर के मामले में काफ़ी स्ट्रांग थे। लेकिन भंवरी देवी ने उस शादी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, और जब ये केस चल ही रहा था तब 1992 में रमाकांत गुज्जर अपने 5 लोगों के साथ भंवरी देवी के घर गए और उनके हस्बैंड के सामने ही उनका गैंग रेप कर दिया। एविडेंसेस और विटनेसेस की कमी के कारण वो ट्रायल कोर्ट में अपना केस हार जाती है, बट भंवरी देवी वॉज डिटरमिन्ड टू गेट जस्टिस। तो फिर उन्होंने और भी सोशल वर्कर के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में विशाखा नेम से एक रिट पिटिशन डाला, एंड दिस केस वॉज नोन एज विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसे हम पॉपुलरली विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। और इसी विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था 2013 में, जिसका नाम था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडिसल, जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। बोथ विशाखा गाइडलाइंस एंड पॉश एक्ट डिफाइंस what actions amounts to sexual harassment like physical contact and advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks,
showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. Now the question is कि अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो then what should be the course of action for her? पॉश एक्ट कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना है, जहाँ पे अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो तो वहाँ जाके फॉर्मल कंप्लेंट कर सके। लेकिन उन फीमेल्स का क्या जो ऐसे फर्म्स में काम करती हैं जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं, या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं या डोमेस्टिक वर्क्स का काम करती हैं, तो उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी है या फिर ब्लॉक लेवल पे भी होती है जहाँ वो डायरेक्ट जाकर एक फॉर्मल कंप्लेंट कर सकती है। इसके अलावा पॉश एक्ट मैंडेट्स कि हर इंस्टीट्यूशन में पॉश एक्ट के अवेयरनेस सेशंस हो और उनकी रेगुलर एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सबमिट हो। बिजनेस फर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मेजॉरिटी जो है मोर देन 95% तो वो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो उसमें जो केसेस होते हैं ज़्यादातर वो वुमेन रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। उसका बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि इंडिया में जो 95% वुमेन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, तो वो ज़्यादातर MSME है जो बहुत छोटी फर्म्स होती हैं, तो वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक सर्वे किया था स्टेट फिक्स कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इन कोलैबोरेशन विद NHRD, तो उन्होंने पाया कि 8% ओनली 8% वुमेन ही है जो अवेयर है पॉश एक्ट के बारे में। सो अवेयरनेस जो है कम है। तो ये बात जो है थिरुवनांतम बेस्ड एडवोकेट हैं जे संध्या, वो भी कहती हैं कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्क करती है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। सो उनके पास लीगल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो बताती हैं कि अगर इसको हमें बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है कंडक्ट करने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स या सेशंस अबाउट पॉश एक्ट, और जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी जो भी तो उसके लिए वहाँ पे फॉर्म में सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करा जाता है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च में ये भी पाया कि जो 11% वुमेन होती हैं ना, वो कई फॉर्म को क्विट करना ज़्यादा बेटर समझती हैं रेदर देन रिपोर्टिंग द केस। सो ये ज़रूरी है कि हम उसको काफ़ी सेंसिटिव बनाएं ताकि वुमेन दे फील कंफर्टेबल टू रिपोर्ट द केस। इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट अगर NGOs के साथ टाई अप करे, और बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अवेयरनेस बढ़ाए। इसके अलावा हम देखें तो पॉश एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर हम मेजर शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो एक तो इसमें जो वर्क प्लेस को डिफाइन किया है दैट दे कंस्टिट्यूट द कन्फाइंस ऑफ फिजिकल स्पेस और स्ट्रक्चर। मीन्स अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो जाए, किसी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हो जाए जो कि फॉर्म के बिल्डिंग से बाहर है, तो उसके लिए देयर आर नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टू डील विद दोज केसेस अकर्ड इन कॉमन एरियाज। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, द लॉ इज साइलेंट अबाउट एनोनिमस कंप्लेंट्स। कई केसेस में हम देखते हैं वुमेन सामने आके अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती हैं, फॉर्मल कंप्लेंट नहीं देती हैं, तो उस केसेस में फर्म जो है वो दे आर नॉट बाइंड टू इनिशिएट सो मोटो इंक्वायरी। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें जो है कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कब तक जो है जो वुमेन है, जो एग्रीड पार्टी है, उसको जस्टिस मिल जाएगा या उसका सेटलमेंट हो जाएगा। और एक जो ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है कि आज के टाइम में हम मेजर सिटीज़ में अगर देखें तो लिविंग रिलेशनशिप जो है कॉमन है बड़ी बड़ी फर्म्स में। सो जो पॉश एक्ट है इट डज नॉट स्पेसिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। कई बार म्यूचुअल कंसेंसस से भी जो है दो पार्टी सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती हैं, तो उसके डिफरेंस को इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है ठीक से, तो ये कहीं ना कहीं गेट खोलता है एक्ट के मिसयूज़ होने के। सो ये भी एक मेजर लैक्यूना है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत। मेरे विचार में लोग बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं, और दूसरी चीज़ की इतनी प्रावधान है, पनिशमेंट्स हैं हमारे लॉज में, पर लोगों में डर ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोग विक्टिम को ही जज करते हैं, कभी कपड़ों के बेसिस पे, कभी बात करने के तरीके के बेसिस पे, और ये सोशल कमेंट इस लेवल पे काम करते हैं कि गर्ल्स कंप्लेंट करने की जगह जॉब छोड़ना या फिर पढ़ाई छोड़ना प्रेफर करती हैं। एंड अराउंड 90% ऑफ केसेस गो अनरिपोर्टेड। जिसने गलत किया उसे सज़ा ना मिल के जिसके साथ गलत हुआ उसे ही सज़ा मिलती है। इसके वजह से ऐसे गलत मेंटालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। अगर हम रेप को देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो सेक्शन 375 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो डिफाइन करता है रेप एज
sexual intercourse with a woman against her will, without her consent, by coercion, misrepresentation of fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped, or is of unsound mental health, and in any case if she is under 18 years of age. तो हम पूरे सेक्शन में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसेंट. कंसेंट को हम हिंदी में समझ सकते हैं सहमति. कंसेंट इज़ डिफाइंड एज क्लियर वॉलंटरी कम्युनिकेशन दैट द वुमेन गिव्स फॉर अ सर्टेन सेक्शुअल एक्ट. सो हम देखें तो मैरिटल रेप जो है वो एक्सेप्शन है टू गिविंग कंसेंट, एज इट इज़ नॉट क्राइम अंडर IPC एज लॉन्ग एज द वुमेन इज़ अबव 18 years of age. सो इंडिया में ये मान के चलते हैं कि मैरिज इम्प्लाइज कंसेंट. अगर हम वर्ल्ड में देखें आउट ऑफ 185 कंट्रीज तो 77 हैव लॉज दैट क्लियरली क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, while 34 countries that explicitly decriminalize marital rape, and India is one of 34 countries. जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि हमें मैरिटल रेप एक्सेप्शन को डिलीट कर देना चाहिए सेक्शन 375 से. और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये रहता है कि ये जो इट विल ओपन गेट फॉर पॉसिबल मिसयूज बाय वाइफ्स अगेंस्ट हर हस्बैंड. और वो कहते हैं क्योंकि इंडिया में मैरिज को काफ़ी सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, हम इसको वेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते. तो अगर हम इस एक्सेप्शन को डिलीट कर देंगे तो इट विल डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज. अगर हम मई 2022 में देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया. 2 जजेस सुनवाई कर रहे थे इस मैरिटल रेप एक्सेप्शन के ऊपर. तो वर्डिक्ट जो है स्प्लिट था. इसमें एक जज का स्टैंड ये था कि हमें इस एक्सेप्शन को डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में हमें वुमेन की इक्वालिटी और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. लेकिन जो दूसरे जज थे वो गवर्नमेंट के स्टैंड से सहमत थे. अभी फ़िलहाल मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो सब जुडिस्ड है. लेकिन हम देखें कि इट इज़ हाई टाइम इन टुडेज टाइम वी रिस्पेक्ट वुमेन्स डिग्निटी, इक्वालिटी, एंड वी शुड नॉट मेक वुमेन सबऑर्डिनेट और अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. सो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए. इस एक्सेप्शन को डिलीट करना चाहिए सेक्शन 375 से. और प्रॉपर सेफगार्ड्स भी होने चाहिए कि इसके पॉसिबल मिसयूज़ ना हो सके. तो इन सब से कोप करने के लिए कुछ मेजर्स फॉलो कर सकते हैं हम ऑन पर्सनल लेवल एज वेल एज सोसाइटी एज अ होल, जैसे कि टू क्रिएट सेफ प्लेसेस अराउंड आवर चिल्ड्रन, एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज, ताकि हम ओपन डिस्कशन कर सकें एंड उन्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो डरे ना. टू कर्ब दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, जो बिहेवियरल चेंज है वो पहले हमसे स्टार्ट होना चाहिए और हमारे घर से. एंड अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द लॉज एंड राइट्स ऑफ वुमेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट लार्ज स्केल. आई थिंक सो दैट कि इस तरीके के एक्ट को और इस तरीके के एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमें हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यानी कि हर लेवल पे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सब में कैंपेन्स करने चाहिए और साथ में फिर उनकी वर्कशॉप्स करवानी चाहिए जिसमें हम पर्टिकुलर तरीके से बता सकें लोगों को कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे हम उसको बच सकते हैं या फिर उसके ऊपर क्या क्या एक्शंस हमारे पास लेने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं जिसके ऊपर अपना वर्क कर सकता है हर पर्सन. या और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि छोटी क्लासेस से बिल्कुल हमें स्टूडेंट्स को और बच्चों को हर पर्टिकुलर वे में, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें सिखानी चाहिए और बेटर तरीके से सिखानी चाहिए जिससे कि उन लोगों को ये चीज़ माइंड में अच्छे से सेट हो जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, और अगर जो गलत है उसके ऊपर क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं. In my opinion, there is a need to develop sensitivity, and this sensitivity should be promoted from the early child education. बच्चों से इशू करते हैं, जैसे कि हम बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, उससे एक स्टेप और फॉरवर्ड जाके हम बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि कैसे इस तरह के एक्ट एक विक्टिम के लिए हार्मफुल होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी. तो इसकी शायद बच्चों से ही की जाए. अंत में हम पुष्यमित्र उपाध्याय द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कुछ इस प्रकार है. छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे.
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद।